اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بریفنگ پر موجود ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر. پشاور موڑ پر یہ واقعہ ہے. اور اپنی وزیر اعظم شہباز شریف کو میٹرو بس سروس کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ. جی احمد صاحب. یہ کوئکلی جو اوور ویو آپ کو ہم دیں گے جو روٹس تھے. سر I'll quickly just wind up in 3-4 slides جہاں آپ کی انسٹرکشنز ہیں اس پہ میں آ جاتا ہوں. So just to give you an overview, these are the 3 routes. ریڈ والا ہے جو کہ اسلام آباد پنڈی میٹرو ہے سر. اورنج ہے جس پہ ہم آج وی آر ڈرائیونگ سر. اور بلو ہے جو رباط سے کنیکٹ کرتا ہے. دیز آر 3 امپورٹنٹ BRT روٹس سر جو اسلام آباد. کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے سر؟ یہ جو ہم جس پہ ہیں سر یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے NHA اسٹیشن جہاں ہم اس وقت ہیں. ٹرمینیٹس ایٹ دی ایئرپورٹ. 25 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے سر. بھارکم نہیں سر, اٹس ناٹ کمنسنگ فرام بھارکم. Originally it was supposed to be from Bharakau up till airport, but it was not taken up. It's not feasible? Sir, I think that is in fact more feasible. Last slide with there's a suggestion jaisa aap decide karte hain sir. So this is where we are right now. Just to give you an overrun, 12th کو آپ کی instructions 12 تاریخ کو آپ کی انسٹرکشنز پہ سے میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دس ہیز ٹو بی اسٹارٹیڈ آن دس سیٹرڈے, جس پہ کنوے کیا گیا تھا. اس وقت دس واز دا اسٹیٹس ہے. بیلنس ورکس ور ریمیننگ. NHA نے سے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا ہے یہ, اور میٹرو اتھارٹی نے فارمولیٹ ہونا ہے فار اسلام آباد. ٹیمپریرلی CDA کو اسائن کر دیا گیا کہ اسے آپ چلائیں اور آگے لے کے چلیں سر. سر اس وقت NHA نے ایگزیکیوٹ, ناٹ CDA, بٹ CDA از ڈوئنگ اٹ آن بہاف آف دا گورنمنٹ till such time metro authority is formulated sir. My submission is that جیسے پنجاب میں metro authority بنائی گئی تھی, either Punjab metro authority is extended here or there is a new authority. That's fine, I understand. So we'll be running it. That's for the purpose of operation and management. We'll be running it. I understand, but the project originally was given to NHA, not to CDA. The NHA transferred to you? اب NHA ٹرانسفر کر رہے ہیں جس میں ابھی مہینے کا ڈیلے تھا پہلے, جو اب آج یا کل ہو جائے گا ہمیں پوری طرح سے. آپ کو جی سر. کب کمپلیٹ ہوگی سر اس کی جو ٹائم لائنس تھیں جو پہلے چل رہی تھی October 22 میں کمپلیٹ ہونا تھا. کمپلیٹ ٹرانزیکشن وچ از بسز, ٹکٹنگ سسٹم, سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم. اوریجنل پلان میں کیا تھا؟ اوریجنل پلان میں تو کافی جی وہ تو 2018 میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. بس یہ چلتا رہا. لاسٹ ایئر CDA October 2021 میں آیا کہ اچھا جو ریمیننگ ورکس ہیں وہ CDA ٹیک اپ کر لے, وچ آر آپریشنل. NHA کے ہیں آپ؟ جی سر, چیئرمین بھائی بتائیے, آپ ملتان میں آپ کمشنر رہے ہیں, کیا ہوا اس میں؟ سر ہم نے جو پروجیکٹ تھا کمپلیٹ کر کے 1 سال پہلے ہینڈ اوور کر دیا تھا ٹو دا CDA, کمپلیٹڈ اینڈ آل آفٹر چارجز کے بعد. ابھی بیکاز دے ہیونٹ ٹیکن اوور ان ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے آپریشنلائز نہیں کیا, تو مائنر ایشوز آئے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو ریکٹیفائی کرا دیں, وہ ابھی ہو رہے ہیں. کھنڈرا دیکھیں, میں ناٹ ٹرائنگ ٹو سر indulge in any kind of blame there. Sir. But I'm sorry to say, I mean, ever since I have been a member of the National Assembly in 2018, اس کا کھنڈرات میں دیکھتا ہوں. Sir. The last 4 years. Sir. کیا طریقہ میں یہاں پر not speaking for myself. جی رائٹ سر. 10-11 خود ملتان میں ابھی بھی ملتان آپ رہے نا سر, تو آپ نہیں بنائے تو کیپٹن اسد نے کیا, اسد نے بنایا تھا. Look at the speed of this project. رائٹ سر. So what I'm saying is, don't we take lesson from those projects and do things even better? سر سر اس کو ٹھیک کرا لیں. جی رائٹ. اس کی allocation ہی نہیں ہوتی تھی, کیا ایشو تھا؟ نہیں سر, یہ پروجیکٹ بی کمپلیٹڈ ایون بفور آئی جوائن NHA مور دین اے ایئر وہ ہینڈ اوور ہو چکا ہے, اور بٹ وی ول ہیو اٹ ریکٹیفائڈ ویئر ایور ریکوائرڈ. سر اگر فنڈنگ میں کوئی ایشو نہیں, نہیں سر کوئی فنڈنگ نہیں. تو why it is taking 4 years?
سر ہم نے آپریشنلائز نہیں کرانا تھا. جسٹ ٹو کلیریفائی سر, ہم نے سول ورکس کر کے ہم نے ہینڈ اوور کر دیا. کب ہینڈ اوور کیا سر اٹس بین مور دین اے ایئر سر, مارچ 2021 سر. بٹ یہ نہیں کیا ہے سر سر اگر آپ نے ہینڈ اوور ایک سال پہلے آپ نے سر 2021 دیٹس رائٹ سر. So how do you explain this delay of 3 years? Sir, I can check, sir. I wasn't here. I've just joined. I will check, sir. Sir. Right, sir. جہاں سے Sir. میرے جہاں سے ایک بات تو کلیئر ہے نا سر, I have never spoken in down the neighborhoods. I talk about the department or the institution. So if he was not there, I'm not blaming him, I'm talking about the department. یہ تو بات کلیئر ہے. بڑی کلیئر ورکنگ ہوئی بھی ہے جی, اینڈ دے آر ناٹ ریلیز کلاس ہو جانا چاہیے تھا. آئی تھنک سر ایلوکیشنس پوری تھیں کہ نہیں, کرسی لائیں کرسی جہاں سے ایلوکیشن سے پوری ہیں جی, ریلیزز بھی ہوئی ہیں, اس سال کے لیے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. When we have done this project, such projects, in less than 1 year, 4 سال کا There's no reason for any delay, sir. اس کے ریزن تو نہیں ہے یہاں پر, and I think there's no justification. So, احمد یار آپ اچھے energetic officer ہیں. I'm telling you very frankly, I'm not trying to criticize. People would think کہ بھائی ہم گاڑی میں کرتے ہیں, پجیروں میں کرتے ہیں, سرکاری گاڑی میں ہیلپ پلس پبلک جائیں, پیدل جائیں. And then look at the amount of this poor country's funds being consumed in such mega public welfare projects. کتنا لوگوں کو ہوتا آسانی ایئرپورٹ تک پہنچتے, کوئی مزدور جا رہا ہے, قطر جا رہا ہے, کوئی کویت جا رہا ہے, کوئی سعودی جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے. 16 ارب روپیہ کا 16.4 نہیں سر, اس میں 18 بلین میں انہوں نے ایگزیکیوٹ تو آٹومیٹکلی I'm sure وہ بیچ میں ہوں گے. Who's bearing that cost? Cost overrun. یاد اس طرح کا پروجیکٹ ہوا نہ ہوتا تو 10 people have come out of thousands of اور look at the cost distribution is there. Look at the difficulties and suffering of the common man, commuter. گزرتا ہو گئی کیا ہے. جی سر, سو دس از دا لاسٹ سلائڈ جس میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو آپ کی انسٹرکشنس تھیں 2 دن پہلے, جس میں آپ نے کہا تھا اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ, دیر از نو ادر چوائس. 16th کو ہم شروع کر دیں. 15 buses are being taken from PMA. اب دیکھیں احمد سر, وہ کیا چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے کہ وہ کیا ایجاد ماں ہوتی ہے, ضرورت ماں ہوتی ہے ایجاد ماں. اب بورو کر رہی ہیں بسز ویری گڈ تھنگ. میں نے کہا تھا کہ سن all these things could have been happening. You are a very experienced person. اب تو آپ کو بہتر ہونا چاہیے ان بچوں کا. Guiding them. You have gone through this personally. You have seen this through this person. جی سر, 15 buses آ جائیں گی جی. اورنج لائن, But I hope not at the cost of their operation. نہیں سر, we'll be funded, اور وہ ہم اسے کر دیں. بس کب آ رہی ہے؟ ہماری بسز آ رہی ہیں 5th. تو دی انٹرم دس ول بی ارینجمنٹ سر. 15 buses چلتی رہیں گی. 2 months کا ہم نے PMA کے ساتھ. What is the traffic estimate you are? سر جو اس پہ جو اوریجنل اسٹڈی ہوئی تھی وہ تھی 12 کو سے. جو یہ والی اسٹڈی تھی NHA کے پاس اسٹڈی میرے خیال میں اس کی موجود نہیں تھی. 12 کو سے کہتے ہیں ٹریفک جو ہے بہت
हैवी होगी उसको हमें उसकी प्लानिंग करें, उसकी स्टडी करवा दें कि आप नौकरी उसकी गौर थोड़ी स्टडी करें, ताकि अगर वो जो सेगमेंट है अगर वाइबल इन फिजिबल तो वी मस्ट डू दैट इमीडिएट। आप स्टडी जल्दी से करवा दें। सर ये जो इसके दो हो गए सर सेक्शन, एक है NHA स्टेशन जिसमें हम मौजूद हैं, ये जाता है आगे और लीड टाइम क्या होगा? सर 6 to 8 मिनट्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं सर यहाँ से, ज़्यादा है यार, इसे कम कर लेंगे सर। लेकिन सर जो लीड शटल टाइम 6 to 8 मिनट ज़्यादा है। 5 मिनट है स्टैंडर्ड जो BRT का होना चाहिए, वी कैन ब्रिंग इट टू दैट। बाकी जगह पिंडी में कितना है? 3 to 4 मिनट्स है सर पिंडी का। 3 मिनट ही होना चाहिए, ठीक है 6 to 8 है। सब देख लेंगे। अच्छा सर, दूसरा ये जो शटल सर्विस है विच इज़ फ्रॉम N5 टिल एयरपोर्ट, उस पर लीड टाइम कम रखा गया है क्योंकि वो सिर्फ एयरपोर्ट की ट्रैफिक ला रही है। इट्स एन 11 किलोमीटर स्ट्रेच, उस पर डेड वो है वेट, उस पर कोई पैसेंजर लोड नहीं है। आपने जो वहाँ मोटरवे के जहाँ पर जी सर, जी आपको क्रॉस करती है वहाँ पर नया स्टेशन है आपको? जी सर, मोटरवे के मोटरवे के ऊपर लास्ट स्टेशन आता है जो कहलाता है N5 स्टेशन। मोटरवे के ऊपर है कोई नहीं, बताइए कि मोटरवे 11 किलोमीटर्स आर विदाउट एनी स्टेशन। इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। मोटरवे पे जो लोग आपके एयरपोर्ट, उसी वजह से सर वहाँ लीड टाइम हमें 25 से 30 मिनट रखना पड़ रहा है बिकॉज इट बिकम्स पॉइंटलेस, देयर इज नो स्टेशन देयर सर। जरूर करें और मोटरवे के ऊपर स्टेशन जरूर बनवाएं, वरना द इंटायर प्रोजेक्ट लूज इट्स बेनिफिट्स, एडवांटेजेस यूज़ कर जाएंगे अगर मोटरवे के ऊपर अगर आपने नहीं बनवाया। एग्जैक्टली जो भी है आपने शटल बस सर्विस करनी है, जो भी करना हो जाएगा और शटल सर्विस हो जाएगी। इसमें सर आप इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए। सर इसमें एक सबमिशन है, अगर आप इजाज़त देते हैं सर। जो शटल सर्विस है, दिस इज़ बीइंग प्रपोज्ड एंड वी आर डिस्कसिंग इट। शटल सर्विस शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ से भी करनी है। मोटरवे को इसलिए कह रहे हैं ये होना चाहिए आप शटल सर्विस चला के ट्रैफिक ठीक है सर। कम्यूटर को बना सकते हैं सर 2 and 4। जी सर, क्या इशू है? सो वी आर ये आपका जो मोटरवे को जो उसका स्टेशन जो है उसको वॉर में बनाना है। ऑब्जर्व योर पेपर रूल्स, उसमें जो भी इसमें स्पीडिस्ट प्रोसेस है उसको फॉलो करें। तो सर ये we are now ready to start from inshallah Saturday 15 buses Not now, from here sir। जी सर, not now. सर आप स्टार्ट करेंगे पहली बस जो है हम पर, बिकॉज वो कलर कोडिंग सर सबमिशन, ये कलर कोडिंग विल टेक 2 days। We can start। आप स्टार्ट मोटरवे को इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर आप शटल सर्विस चला के ट्रैफिक को कम्यूटर को मिला सकते हैं वहाँ 2 and 4। क्या इशू है? ठीक है, सो वी आर तो ये आप जो मोटरवे के ऊपर जो इसका स्टेशन जो है उसको वॉर फुटिंग में बनवाना है। ऑब्जर्व योर पेपर रूल्स, बट उसमें जो भी इसमें स्पीडिस्ट प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। तो सर ये we are now ready to start from inshallah Saturday 15 buses नॉट नाउ, from here sir। जी सर, नॉट नाउ। सर आप स्टार्ट करेंगे पहली बस जो है हम पर, बिकॉज वो कलर कोडिंग सबमिशन, ये कलर कोडिंग विल टेक 2 days। नहीं बेगिन आप स्टार्ट करें भाई, और मेहरबानी करके चूँकि ये बंद पड़ा रहा है सारा साल से, जहाँ पर आपके रंग रोगन ख़राब हो गया है जहाँ पर, और आई हैव टू से दैट द क्वालिटी फिनिशिंग क्वालिटी ऑफ दिस सिस्टम इज़ नॉट एज if you compare with Pindi, it's not that I'm not trying to pick up faults, but मैं देख रहा हूँ आप उसको भी मेहरबानी करके इसका रिपेयर वर्क करवाएँ, और इसकी मगर ये डिले क्यों हुई है फिर इसकी डिले हुई है, डिले की इंक्वायरी करवाएँ, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। आई वांट टू नो व्हाई दिस डिले, क्यों फैसले टाइम पर नहीं हुए और क्यों नहीं चीज़। बसें अगर बन गया तो प्रोजेक्ट बसें अब अपना LC खुल गई,
LC खुल गई बसों की? बसेस तो सर ट्रांसपोर्टेशन में है, विल बी हियर 5 मई। लेकिन सारी इंक्वायरी करा के मुझे बताएं, इसको TORs बनाएं, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कौम का पैसा है, इसको 16 अरब रुपये लग गया हुआ है, बेनिफिट लोगों को नहीं ये पहुँचा। दैट्स द पॉइंट। इसकी एक इंक्वायरी करवाएं भाई, इसकी बड़ा ज़रूरी है। I'm not trying to, not with a predetermined mind, with an open mind inquiry करवाएं, ये क्यों ऐसा होगा? This is about it sir। अभी हमें सिर्फ फाइनेंस मीडिया कर देगा, ब्रिज फाइनेंस प्रोजेक्ट को चलाते रहेंगे for 45 days, जब प्रॉपर इसका सिस्टम आ जाएगा। और हाँ, मैंने कहा था कि इन्होंने वो टेक्निक मशीन इंस्टॉल तो नहीं किया आपने? जी सर, नहीं तो हम फ्री मैनुअली करें, और अभी तो आप फ्री चलाएंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। लेट इट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेट द पीपल एंजॉय फ्री राइड मंथ ऑफ रमजान। और फिर आप देखेंगे अभी on the word go as I speak, उसको फ्री चलाएं। So आप अगर मुनासिब समझेंगे, we can even take you to the end, the last terminal point, airport it is ready right now। जैसे आप इंस्ट्रक्शन दिए हम आज से स्टार्ट कर दिया। कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस साफ कर लें, मेल मार्क के लिए वो नहीं हो जाए, ये प्रोग्राम थोड़ा उसका सैटरडे तक आप दे देते हैं हमें। आप हो जाएगी दे दें। प्रॉपर इस पर चलो कोडिंग भी जो है ओके, बट देन सैटरडे मीन्स इंटरनेशनल सैटरडे। और मैं सर आपको याद है स्टेशन को तो थोड़ा सा डेकोरेशन भी की थी काफ़ी, ठीक सैटरडे, थोड़ा उसको ऑल राइट। एक्टिविटी क्रिएट करना। भाई ज़रा मेहरबानी करें, ये आवाम का ख्याल करें, डेट्स ऑल। लोग ज्वाइन रहेंगे आप लोग इस शहर रमज़ान में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब दो चीज़ें हो गई नाज़िम खान, एक तो भाराकोर की स्टडी कराएं, और एयरपोर्ट के ऊपर आप वॉर फूड में स्टार्ट करें, ये मोटरवे कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली मोटरवे। लेकिन और कुछ नहीं तो इन बसों में लोग जब एयरपोर्ट जा रहे हैं अपने लगेज लेके जा सकते हैं, टैक्सी में लेके जाते हैं तो पता नहीं दे हैव टू बेयर आई थिंक अनबेरेबल कॉस्ट। और यहाँ पर आपने बनाए हुए रैक्स अपना उनके लिए जो एयरपोर्ट जिन्होंने जाना है, जी सर, उनका लगेज के लिए आप बनाए, लगेज के लिए सर दैट विल बी सेटअप, वो करवाया गया। बहुत ज़रूरी है ना। वो आप हम जाते हैं जब हीथ्रो, तो वहाँ से जब पैडिंगटन चलती है तो लगेज का बाकायदा आप उन्होंने रैक्स में ये यहाँ से भी ज़रा चेक कर लें, लगेज के लिए इसमें रैक्स बनने चाहिए। सब स्पेशली लगेज वाले वो कहाँ टर्क्स किधर हैं? आपने उसमें स्पेशली इसमें बिल्डिंग करवाया हुआ है जो बसेस आ रही हैं? जी सर, लगेज के लिए। जी सर, श्योर जी। इसमें शटल सर्विस भी है ना, जो यहाँ से जैसे हीथ्रो का आप लोग का हीथ्रो एक्सप्रेस की तरह, बिकॉज देयर विल बी राइडरशिप जो यहाँ आके गाड़ी पार्क करें तो दैट्स फाइन, बट जो बसेस चलेंगी और लगेज की गाड़ी वो लग रहे हैं, उससे हम 2 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। उसमें जो शटल बसेस है उनमें है, इनमें भी होना चाहिए ना भाई। जिन्होंने शटल बसेस लेके आ रही हैं तो जब शिफ्ट करेंगे एयरपोर्ट जाएंगे तो इसमें नहीं होंगे रैक्स। बहुत चीज़ है जो टर्मिनल जहाँ ये इसका बना हुआ है, दैट इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दी एयरपोर्ट, जो पार्किंग के पीछे वी मेड एन अरेंजमेंट कि बिल्कुल जो ड्रॉप लेन है वहाँ कर दिया गया। सिविल एविएशन भी यहाँ है, आपकी तरफ से इसमें आ जाएगा, क्योंकि वरना लोग उतरेंगे लगेज लेके और आगे फिर पैदल चलना शुरू करेंगे तकरीबन 70 मीटर। नहीं वो तो बहुत रैंप बना रहे हैं। नहीं रैंप नहीं, उसको बिल्कुल ड्रॉप लेन में हमने अरेंजमेंट टेम्पररी किए, आपकी इंस्ट्रक्शन सीधी जाएंगे नहीं तो वो एट ग्रेड एस्केलेटर को नहीं बना लेते। वो पार्किंग रैंप बहुत दरमियान पार्किंग है, वो पॉपुलेटेड बन सकता है, लेकिन वो पार्किंग बेस्ट हुआ कि ड्रॉप लेन में चले जाएंगे। ड्रॉप लेन वाला अच्छा है। अब वो ड्रॉप लेन चले ये ठीक है, चीज़ वो कर रहे हैं। सर यहाँ पर पार्क एंड राइड भी हो गया ना, अगर लोकल फ्लाइट है किसी ने गाड़ी बिल्कुल सही बात। तो अब सैटरडे इंशाल्लाह मीन सैटरडे मेहरबानी करके अल्लाह का नाम लें तो प्लीज़ compensate for the losses of the past, please, in every sense of the word. I'll be very grateful. इस तरह नहीं यार, ये this is not the way. इस तरह नहीं होना चाहिए कि सर मुंडाते उड़े पड़े। ये मतलब 16 बिलियन आप खर्च कर चुके हैं, nobody is bothered, इसलिए कि गरीब आवाम में यतीम बेवा मजदूर के लिए this is very unfair. this is very unfair. एनी अदर कोई और सवाल है किसी को? सर मेरी सोल्यूशन है सर, जो जिस वक्त रात में भी
सिलेक्शन दी है बारागढ़ से यहाँ तक स्टडी हमारे साथ सर रवात से भी यहाँ तक स्टडी हो रही है सर, लेकिन वो सबसे बिजिएस्ट हुई है, सबसे सर अगर आप इजाज़त है उस पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो मैं कहता हूँ बताते हैं, हम 30 बसेस ला रहे थे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके इंस्ट्रक्शंस में वी कैन वर्क ऑन इट कि हम ब्लू लाइन उसमें से 15 बसेस को ब्लू लाइन में इट कैन बी डन। राइडरशिप इसकी जो स्टडी है जो मुझे वो कितनी नहीं होगी, हम वो स्टैंडर्ड मीट कर लेंगे 15 बसेस पे कि अगर हम ये लेके चलाते रहते हैं 15 हमारी आ जाएगी तो हम पॉसिबिलिटीज देख लेंगे मैक्सिमाइज उसके फीडर रूट्स हैं ना मैक्सिमाइज करें, आइडल बहुत ज़्यादा डिमांड है जी, उस पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो रवात और दोनों और जहाँ जब इसकी टाइम लाइन इसकी बड़ी आपको प्रेजेंट करेंगे जल्दी करा मेहरबानी आप जल्दी करें। ये दो चीज़ पॉइंट और तीसरा मोटरवे का और चौथा केस में बकायदा लगेज फीडर रूट्स की स्टडी के साथ और ये जो दो कॉरिडोर और जो आप स्टडी करवा रहे हैं तो फीडर रूट्स भी कर लें जहाँ से ऑप्टिमाइज करें ये आप अपना उससे पूछ लें ना, सब ध्यान से उसने फीडर रूट्स चलाए थे लाहौर में, वो आपको फीडर रूट्स की ना UNDP की ऑलरेडी स्टडी हुई है, वो है सारा इनके पास। तो चलें फिर ज़रा आप एयरपोर्ट का सीट जाएंगे या वो कितने बहुत ज़्यादा लंबा है N5 पे आप लास्ट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे थे। 4 साल से ज़ेर इल्तवा और 25 किलोमीटर के फासले पर यह बनाया गया मंसूबा है, जो कि पेशावर मोड़ था न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक है। मेट्रो बस सर्विस का ये मंसूबा है, पिछले 4 साल से ताख़ीर का शिकार था, उस पर ब्रीफिंग दी जा रही थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है कि अब तक इतने 16 अरब के करीब इसके ऊपर खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मंसूबे के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं सामने आई है। ये आवाम के साथ ज़्यादती है, जल्द अज जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। और उनका ये कहना था कि मोटरवे पर इस्लामाबाद मेट्रो का एक स्टेशन होना चाहिए, इब्तदाई तौर पर हफ्ते के रोज़ से बसें चलाई जाएंगी। एक नई रिवायत देखने में आ रही है कि वज़ीर आज़म 7 बजे ही ये ब्रीफिंग लेने के लिए पहुँच गए हैं, और चूँकि वज़ीर आज़म खुद यहाँ पर पहुँचे हैं तो अमला उनसे पहले यहाँ पर पहुँचा है। और एक नई रिवायत जहाँ पर उन्होंने कायम की, एक छुट्टी की हफ्ते में, वहीं पर दूसरी जानिब ये देख रहे हैं कि 7 बजे ऑफिस खुल रहे हैं और वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, फ़्लाइट्स में मीटिंग्स कर रहे हैं, और पहले ही दिन वो 7 बजे की रिवायत कायम कर चुके हैं। अभी ये देखने में आ रहा है कि पूरी तवज्जो वज़ीर आज़म की कारकर्दगी की जानिब है और उनकी तवज्जो पूरी तरह से मरकूज़ है उन मंसूबों पर जो कि अभी तक नामुकम्मल हैं और उनको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। अयाज अकबर यूसुफजई इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, इस तफसीलात जानते हैं। अयाज, बताइएगा ब्रीफिंग में क्या अहम पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, 4 साल से ज़ेर इल्तवा मंसूबा था और मुस्लिम लीग नून के जो पिछला दौर था उसमें इस मंसूबे को शुरू किया गया था। फिर तकरीबन काफी ज्यादा इस पे कोई 80 से 90% काम हो गया था, लेकिन फिर नई हुकूमत में आने के बाद इस काम पर कोई तवज्जो नहीं दी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ही पड़े पड़े तबाह हो रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आते साथ ही 2 दिन कबल ये इंस्ट्रक्शन जारी की वज़ारत दाखिला को, CDA को, चीफ कमिश्नर को और NHA को कि मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जो है इस मेट्रो को आप बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में करके दें, मैं इसको चेक करूंगा। आज सुबह अचानक ही वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में उन्होंने एक तो मंसूबे के हवाले से देखा कि इसमें काम का मयार जो है वो इतना बेहतरीन नहीं था, जिस पर उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो उनको कहा कि इसके काम को मयार को बेहतर बनाया जाए। कंपेरेटिवली देखा जाए तो पिंडी की मेट्रो इससे ज्यादा अच्छी बनी हुई है। एक तो चीफ कमिश्नर चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद उनको ब्रीफिंग दे रहे थे, उनके पास दोनों चार्ज हैं। उनको उन्होंने बताया कि आप इसको कब शुरू कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हफ्ते के दिन से हम 15 बसेस। तो उन्होंने कहा हफ्ते वाले दिन क्यों, अभी से क्यों नहीं, आज से क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि कुछ हमें थोड़ा सा काम को बेहतर करना है, कुछ इसकी स्टेशंस की रिनोवेशन है,
कुछ उसकी डेकोरेशन का काम भी करना है। तो फिर वजीर आजम के साथ जो उनका स्टाफ था उन्होंने कहा कि इनको 2 दिन दे देते हैं, हफ्ते वाले दिन इसको करें। दूसरा उन्होंने इस पे भी थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया कि ये 25 किलोमीटर का जो ट्रैवल है इसके अंदर जो 11 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन ही कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि 11 किलोमीटर तक आप लोगों ने स्टेशन ही कोई नहीं दिया, जिस पर उन्होंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन जारी की कि पेपर और रूल्स को देखते हुए इस पर फौरी तौर पर मोटरवे का जो पैच है 11 किलोमीटर का उस पर फौरी तौर पर एक स्टेशन बनाया जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बसेज आ रही है क्या उसमें सामान रखने की जगह है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के लिए हमने ये शुरू किया था और क्योंकि यहाँ पर कई गरीब लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो टैक्सीज को और गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या इंतजाम होगा, वो कैसे अपना सामान लेके जाएंगे। जिस पर आमिर अली अहमद जो है वो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल है, लेकिन वजीर आजम बार बार पूछते रहे कि मुझे बताएं। उन्होंने लंदन हीथ्रो पेडिंगटन स्टेशन की बात की कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर रैक्स बने हुए बसेस में, तो क्या इसमें रैक्स हैं? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो फौरी तौर पर इसको बेहतर करें और इसमें सामान रखने की जगह होनी चाहिए। वजीर आजम ने ये भी जो है इसरार किया कि मुझे अभी जो है मेट्रो स्टेशन को स्टार्ट करके दें, जिस पर उन्होंने कहा कि 2 दिन हमें दे दें। उस पर वजीर आजम ने ये भी कहा कि ये पैसा जो है ये अवाम का पैसा है और इस पैसे को हम जाया नहीं होने देंगे और जिस इस काम में जो कमी कोताहियां हुई उसके हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मजीद इस काम को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम ने इंस्ट्रक्शन दी, साथ साथ बताते रहे कि पेपर रूल्स के तहत जो है वो तमाम काम आप इसको देखें। दूसरा वजीर आजम अभी इस पूरे ट्रैक का 25 किलोमीटर ट्रैक का जो है वो खुद बस में बैठकर वो सर्वे भी कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं। उनके साथ एहसन इकबाल जो उनके दौर हुकूमत में पिछली दौर हुकूमत में वजीर प्लानिंग थे, मरीम औरंगजेब जो एक्सपेक्टेड वजीर इत्तलात हैं, हनीफ अब्बासी जो पिंडी से एक्स MNA रहे हैं, अंजुम वकील खान पिंडी से एक्स MNA रहे हैं, मुफ्ती इस्माइल जो एक्सपेक्टेड यानी मुस्तकबिल हो सकता है कि वजीर खजाना हो, तमाम स्टाफ उनके साथ है, अपना स्टाफ भी उनके साथ है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा इसमें उन्होंने बात की बाराकऊ के हवाले से कि बाराकऊ पे कोई भी इस किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। एक बहुत बड़े एरिया जो मुतवस्सित तबके का जो है वो बाराकऊ से आता है, तो उस हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर ये कहा कि इस पर वर्किंग करके मुझे बताया जाए कि बाराकऊ को इसके साथ कैसे पैच करना है। ये सारा प्लान था बाराकऊ से पेशावर मोड़ से फिर पिंडी, फिर मोटरवे। तो पेशावर मोड़ का जो मेन स्टेशन है इसको हब करार दिया गया था, यहीं से तमाम बसेस ने अपने अपने एरिया में जाना था। फिर वहां बैठे रवात की बात हुई तो उन्होंने कहा कि रवात पे हमने ट्रेन स्टेशन के हवाले से वो लाइन चलानी है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उसको भी आप वर्किंग करके बताएं। लेकिन वजीर आजम काफी संजीदा नजर आए और उन्होंने कहा कि अब इस तरह नहीं चलेगा, फौरी तौर पर ये तमाम चीजें जो है बेहतर करें और वो इस काम में आपसे बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने बार बार कहा कि आप रोड्स की हालत देख लें, साइड की हालत देख लें और बार बार बस में जाते हुए वो यही बात कर रहे हैं कि ये मेट्रो स्टेशन जो है जिस तरह उन्होंने लाहौर और पिंडी की मिसाल दी उस तरह नहीं है, इसको बेहतर बनाया जाए। ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, यहाँ इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, इसको बेहतर इसके काम को बेहतर बनाया जाए और किसी किस्म की काम में कोताही ना हो। वो कहते हैं मैं दोबारा भी आऊंगा। अभी इनिशियली 15 बसेस उसी फ्लीट में से उठा के जो इस पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो चेंज उसमें से 15 बसें उठा के यहाँ पे चला रहे हैं। बाकी बसेस बता रहे हैं कि मई में उन्होंने यहाँ की मजीद बसेस में आना है। जी अयाज अकबर यूसुफ से बिलाशुबा वज़ीर आज़म के बतौर वज़ीर आला पंजाब में उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने ही है और अपनी मेट्रोज़ का अगर वो हवाला दे रहे हैं तो बिलाशुबा एक सक्सेस है, एक कामयाबी है उनकी पंजाब में, जिनका उनके हरीफ और जमातें भी इस हवाले से उनकी तारीफ़ करती हैं और मोतरफ़ हैं। लेकिन इस हवाले से उन्होंने जो आज की ब्रीफिंग में आपने जैसे कि बताया कि गुंजाइश रखने का कहा है इन बसेस में लगेज के लिए, तो ये ब्रीफिंग के दौरान जो ऑफिसर थे उनकी जानिब से ये नहीं तजवीज़ पेश की गई, बल्कि ये तजवीज़ पेश की गई वज़ीर आज़म की जानिब से कि उन बसेस में लगेज का इंतज़ाम ख़ास तौर पर करना चाहिए जिस तरह से यूरोप और दीगर ममालिक में किया जाता है, ताकि वो अफराद जो रोज़ाना सफ़र नहीं भी करते हैं लेकिन इस ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं दूर जाने के लिए या एयरपोर्ट तक जाने के लिए, तो उनके लगेज का इंतज़ाम अगर ना हुआ तो वो अपना सामान साथ ले जाने में उन्हें परेशानी का सामना रहेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं और मनाजिर में आप देख सकते हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं मेट्रो बस पर जानने के लिए कि उसकी सूरत हाल क्या है, उसकी इस वक्त कैसी हालत है, ताकि उस पर मज़ीद अगर कोई काम करने वाला बाकी है तो वो किया जा सके। अयाज अकबर से ही हमें ज्वाइन किए हुए
ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے بریفنگ کے حوالے سے. ایاز بتائیے گا 7 بجے کی وجہ سے کیا افسران کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ آپ ان کی تمام کے چہرے دیکھ لیں, کافی لوگ نیند میں ہیں. ایسر اقبال کی آپ حالت دیکھ لیں, اور ونی اورنگزیب بھی کافی جو ہے وہ نیند کی حالت میں لگ رہی ہے. ان کے دیگر سٹاف بھی, کیونکہ جیسے ہی وزیر اعظم آئے انہوں نے اپنا سٹاف بنا لیا. ان کے ساتھ توقیر شاہ تھے پنجاب میں, ان کی پچ کو سمجھتے ہیں, ان کی کام کی اسپیڈ کو سمجھتے ہیں, ان کو لے کے ہیں. سمیر سید جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ پچھلی دور حکومت میں ان کو بھیجا گیا تھا یہاں سے گلگت بلتستان, ان کو فوری طور پہ بنا لیا گیا. ان کے سٹاف افسر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے کام کی رفتار کو بھی سمجھتے ہیں, ان کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں, اور وزیر اعظم صبح 7 بجے سے اپنا کام شروع کرتے ہیں. لہٰذا کافی زیادہ اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ لیٹ اٹھنے والے لوگ ہیں, اور آرام سے جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے وہ آرام سے 11:30-12 بجے اپنے دفتر شروع کیا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ آئے ہیں, ایک تو انہوں نے ٹائم تبدیل کر دیا ہے, 8 بجے کا آفیشیل ٹائم اور خود 7 بجے آ جاتے ہیں. لہٰذا سٹاف کا مطلب ہے کہ 7 بجے اگر وزیر اعظم آ رہے ہیں تو ان کو 6 بجے آنا پڑے گا. تو 6 بجے سے سٹاف جو ہے ان کا وہ جہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہاں پر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ, پھر ان کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو سٹاف ہے ان کو, پھر ان کے ساتھ جس نے ٹریول کرنا ہے, وہ تمام چیزیں جو ہے کافی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ یہ جی ایاز, بلا شبہ یہ ایک اچھی مثال ہے کہ جو سارا عملہ ہے وہ 6 بجے شروع کر رہا ہے, اپنے دن کا آغاز کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دن کا آغاز اتنی جلدی ہوگا وہاں کام بھی زیادہ ہوگا. 11 بجے کی بجائے اگر 7 بجے آپ آئیں تو کارکردگی میں بہت میجر ڈیفرنس نظر آئے گا. ایاز اکبر یوسف سے بہت شکریہ اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بریفنگ لینے کے بعد جو کہ میٹرو بس سروس کی بریفنگ تھی پشاور موڑ تا نیو اسلام آباد ایئرپورٹ, اس کی بریفنگ لینے کے بعد اس وقت میٹرو بس پر خود سفر کر رہے ہیں.